स्वागत है आपका रिक्वेस्ट वाले शो में, जहां पे आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मेरे साथ है वो जिनको देखकर बोलेंगी आपकी चाची, नानी, मामी कि भैया मुझे चाहिए बहू विद दिस वाणी। प्लीज गिव इट अप फॉर चित्रांशी ध्यानी। हाउ आर यू डूइंग टुडे, चित्रांशी? That was so sweet. Thank you so much. But that's the vibe that you give me, like this really nice girl who's beautiful to look at with a beautiful voice. तो I was like कि यार चाची नानी तो बोलेंगे ऐसी लड़की ही घर पे चाहिए। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरा नाम कैसे उधर डालोगे, but you did a very good job. Thank you. I am very glad you like it. Chitranshi, right off the bat, first of all, welcome to Request Wala Show. We are so happy to have you on board. मुझे ये बताइए कि आपका लेटेस्ट गाना आउट हो चुका है, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। 2026 की शुरुआत हुई है मेरे गाने टिम टिम के साथ, and I'm so happy, like people are loving it. Yes. चीटर बहुत पसंद किया था लोगों ने, मतलब it was everywhere, and I know. Yeah, I'm so happy for that. But Tim Tim is also doing amazingly well. अभी 4-5 दिन ही हुए हैं तो हाँ, मतलब नए साल के साथ आप भी टिमटिमाटे तारे की तरह आ गई हैं सबके फीड्स पे, सबके सोशल मीडिया पे। टेल मी अबाउट द सॉन्ग, व्हाट वेंट बिहाइंड द सॉन्ग, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड द सॉन्ग? टिम टिम मेरी जवानी, टिम टिम मेरी जवानी। I think every girl wants to say this to her boyfriend, partner, husband, that Correct. Listen, don't look anywhere else. I Tim am Tim your मेरी Tim Tim. जवानी। Correct, so मैं हूँ टिम टिम तुम्हारी जिंदगी की, मैं हूँ तारा तुम्हारी जिंदगी की। That's what I think, that is what I am saying in the song. And the song, I made this song with Mo Fusion, again the same music producer जिन्होंने चीटर बनाया था। तो चीटर का सक्सेस के बाद we were like that we have to make another song. Right. And in fact you won't believe, आदित्य, टिम टिम मतलब चीटर से बहुत पहले हमने रिकॉर्ड करा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? या बट देन वी वर लाइक कि लेट्स रिलीज चीटर फर्स्ट। That is also because, sorry to interject, but that is also because I think Cheater was at that wedding period वाला time. It was the right song for that time. तो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमने उस टाइम पे टिम टिम रिलीज नहीं किया, चीटर रिलीज किया, एंड नाउ टिम टिम इज हियर। वेल टिमटिमाता नया साल है, उसके साथ आपका टिमटिम गाना आ गया है, आप भी टिमटिमा रही है, चमक रही है। सो व्हाट कैन बी बेटर? टेल मी दिस कि व्हेन यू वर पिक्चराइजिंग दिस सॉन्ग, व्हाट वाज गोइंग ऑन? डिड यू हैव लाइक अ कॉन्सेप्ट इन हेड ऑलरेडी, या फिर how did you plan it out? I just wanted to dance on this song, because it's a very peppy number. Yes, 100%. आप जैसे ही सुनते हो गाने को तो आपका ऐसे गर्दन भी ऐसे होने लग जाती है। I'm sure जब आपने भी सुना होगा तो आपका भी ऐसे। तो I just wanted to dance my heart out, and I have danced in this video. Right. And then later stages पे हमें हमारे एक दोस्त हैं दावूची, he's from Nigeria, and we were like that, and he's also a rapper, but he stays in India. Okay. Yeah, he stays in India. So we were like that we would love to get you on board with Tim Tim. He did some rap for the song. Okay. And then now the song is for the people out there, and people are literally dancing, और वो पूरा proper dance करके videos बना रहे हैं, मुझे tag कर रहे हैं, and it feels so good कि जो मैंने सोचा था कि गाना लोगों को नचाएगा वो नचा रहा है। तो मतलब 2026 की शुरुआत आपने करी है लोगों को अपनी उंगलियों पे और अपनी आवाज पे नचाकर। बट चित्रांशी, मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन चीटर आल्सो, द सॉन्ग डिड immensely well. It was everywhere और मेरे दिमाग में भी continuously बजते रहता है because I think the hook is very very catchy. But you were working with Harsh Gujral in that song. आप यहाँ पे भी आई थी हर्ष के साथ। मुझे ये बताइए how was the experience? Because मुझे तो एपिसोड शूट करने में पसीने छूट गए थे। He was so funny that I could barely say anything. How could you do the song with him? He's genuinely very funny. Like shoot, usually हमारा shoot जब भी music video का shoot हम करते हैं तो 12 घंटे 13 घंटे maximum 16 घंटे. By chance that shoot went for 22 hours. Yeah. But it did not feel like, I mean, हमें लगा ही नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, ऐसा लगा था कि घर बन गया है, यहीं पर ही बिस्तर लगा के सो जाते हैं, ऐसे ही पूरे टाइम चलता रहे ऐसे, क्योंकि इतना मजा आ रहा था पूरे शूट में. It was so funny. I mean the team as well, the directors team as well, वो भी इतना एंजॉय कर रहे थे पूरे शूट में. मतलब आई हर्ड कि एक इंस्टेंस है जहाँ पे हर्ष खुद ही कुर्सी पे आके डायरेक्टर की बैठ गए थे, एंड ही वाज कॉलिंग कट एंड एंड यू नो आई हैड दिस शॉट, मैं शॉट दे रही हूँ अपना, मेरा डांस सीक्वेंस चल रहा है, एंड मैं बहुत मतलब 2-3 बार हो गया है, बहुत थक गई हूँ, एंड सडनली मैंने प्रॉपर अच्छे से कर लिया है, सब कुछ बढ़िया था, लाइट्स वाइट सब बढ़िया, एंड मुझे आवाज़ आती है कट, एंड दैट वाज नॉट डायरेक्टर्स वॉइस, एंड आई वाज लाइक ये कौन है,
तो वहाँ से हर्ष वो वीडियो देख रहा है और बोल रहा है कट, अच्छा हो गया चलो चलो लाइक वाओ, ही इज सो फनी. तो बहुत मजा आया. द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. वेल चित्रांशी, मुझे ये पता है कि आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बट मुझे ये जानना है कि हाउ वाज चित्रांशी एज अ किड, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल फेस एंड ग्रेट वॉइस देयर इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल हु स्कोर्ड लाइक 96-98% in 12th boards. Yeah, I did. What? Yeah, I did. I was I think अपने बैच में I was second or third. 98% पे second या third. 96.5% आए थे मेरे exact. तो I was second or third in my. मैं बस ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा ये एपिसोड ना देखे, वरना इस एपिसोड के बाद ही मुझे डंडे पड़ जाएंगे. यार एक्चुअली ना द थिंग इज कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, सो मैं हमेशा से एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इसी में मेरा ध्यान रहता था. तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू से दैट लिसन, तुम्हें लाइफ में जो करना है तुम करो, सिर्फ 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ और उसके बाद अच्छे कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें कभी भी नहीं रोकेंगे. ये तो पेरेंट्स का स्टैंडर्ड डायलॉग होता है. बट उन्होंने जेन्युइनली कभी नहीं रोका. बट मतलब ऐसा बाकी के लोग तो नहीं करते. मम्मी पापा अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो, बट जनरली ऐसे ही होता है. बेटा बस 6th क्लास तक अच्छा पढ़ लो, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे. बेटा 10th बोर्ड्स में अच्छा पढ़ लो, फिर कुछ नहीं बोलेंगे. 12th में अच्छा कर लो, अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अच्छी. अरे बच्चा क्या, मॉम डैड व्हाट इज दिस. बट हाउ वाज चित्रांशी एज अ किड? मतलब बचपन से आपको सिंगिंग और एक्टिंग का तो बहुत ही शौक था. हमेशा से. मतलब हाउ वर यू एज अ किड, लाइक ऑलवेज ऑन द स्टेज? ऑलवेज ऑन द स्टेज. आई मीन अगर आप मुझे, सो आई एम फ्रॉम रायन इंटरनेशनल स्कूल. या एंड मैं नोएडा से हूँ. I love it. I'm from Ryan International School. मैं नोएडा से हूँ. Love that. नहीं, that just like came out. Yeah. Of course. When you're from Ryan International School, it comes out. Yeah, so Ryan International School, Noida. Ryan International School, yeah, Noida. And मेरी मम्मी ना जब भी PTM में जाती थी तो she was like यार मुझे नहीं जाना तेरे PTM में. तो आई वाज लाइक मम्मा क्यों? तो मम्मी बोलती थी कि मुझे कुछ ग्रेड्स के बारे में तो टीचर्स बोलते नहीं है, बस ये बोलते हैं कि ओ माय गॉड ये स्टेज में कितने अच्छे से डांस करती है, मेरा मन करता है सिर्फ इसको देखते ही रहो, शी इज सो ग्रेसफुल, शी इज सो दिस दैट. मेरी मम्मी लिटरली पूरे 12 साल सिर्फ यही सुना है मैंने PTM में. मेरे साथ भी हुआ था. ये मेरे साथ भी होता था कि मम्मी बोलती थी कि कोई तो शिकायत, कुछ तो हरकत कर ले, तो कुछ तो बुराई मिल जाए हमें. मैंने कहा ठीक है, मैं टैलेंटेड बच्चा आपने पैदा किया है, so might as well. Same goes for you too. Anyway, so you were that kid in the school who was always on the stage. Teacher's favorite. I was always there. मतलब कोई भी responsibility अगर दी जाती थी तो I used to be like मुझे दो types. हाँ, monitor and cupboard monitor में अच्छी नहीं बन पाती थी. मैं prefect थी but monitor नहीं बन पाती थी क्योंकि मैं ज़्यादा तेज नहीं मतलब मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं पाती हूँ. अथॉरिटेटिव ऐसे मतलब कि चुपचाप से बैठो यहाँ करो, ये मत करो, वो मत करो. मैं बच्ची थी ना तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था. तो आई रिमेम्बर वंस मेरे क्लास में 2 लड़के थे, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि अगेन मैं उनको अभी भी जानती हूँ. तो उन 2 लड़कों की मैसिव लाइक बहुत ही गंदी वाली लड़ाई हो गई उन लोगों की. एंड मैं वहाँ पे मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं क्योंकि उनको छुड़ा ही नहीं पाई. and I was the monitor and then my you were the monitor. Yeah, I was the monitor and I was like मैं क्या करूँ, and I started crying. and then for some reason principal round पे निकली हुई थी मेरी अनुराधा मैम. एंड उन्होंने देखा एंड शी वाज लाइक इस लड़की को किसने मॉनिटर बना दिया. ये लड़की रो रही है, इनको रुलाने का काम दिया था. So that was me in school. But if I talk about like studies and curricular activities, I was always there like on the stage. Or maybe studies, maybe I was good student. 12th में मैंने बहुत ही अलग, मतलब मैं खुद शॉक थी कि इतने मार्क्स आ गए. Correct. And after that you went to college and you did like proper English ऑनर्स आपने किया हुआ है. इंग्लिश ऑनर्स पे भी मेरे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं, पर हम उस पे बाद में बात करेंगे. मैं कॉलेज नहीं, मतलब ना के बराबर गई हूँ यार. अच्छा, ओके फाइन. बट उसके बाद मतलब हाउ डिड यू वेंचर इनटू सिंगिंग, बिकॉज़ दैट्स अ niche and you were always acting and dancing. तो मतलब ऐसे म्यूजिक कैसे हो गया आपके साथ? I was in 4th class. My music teacher जीत सर, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला दैट इसकी आवाज़. सो मैं ऑर्केस्ट्रा, स्कूल में ऑर्केस्ट्रा जो था, क्वायर होता था हमारा. क्वायर में आई वाज देयर लाइक मॉर्निंग प्रेयर, आफ्टरनून प्रेयर, आई वाज देयर. आई यूज्ड टू सिंग विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल. तो
वहाँ से उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि यू नो शी हैज़ रियली नाइस वॉइस और मैं इसको सिखाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे 2-3 साल अच्छा मतलब जयपुर घराना एंड ऑल पूरा वो सिखाया, हारमोनियम में सिखाते थे वो। तो उस टाइम पे ना आई वाज अ किड, तो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बहुत ही ट्रैप्ड फील होता था, तो आई वाज लाइक मुझे नहीं करना, मैं अपना डांस वांस एक्टिंग करती थी और कॉयर करती थी। लेटर इन लाइफ जब मैंने पास आउट किया एंड देन जब कॉलेज से बाहर निकली, तो तब मुझे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होने लग गया टुवर्ड्स यू नो सिंगिंग। देन आई मेट OSM रिकॉर्ड्स, जिनके साथ मेरे गाने आ रहे हैं, जिनके साथ मैं साइंड हूँ, Manpreet and Himanshu. I met them and they were like, listen, we really want you to sing one song for us. Yeah, and it was COVID. COVID के just मतलब almost खत्म हुआ था COVID, and they were like, listen, so they called me Anshi. So they were like, Anshi, we really want you to record one song. अगर अच्छा होता है तो very good. अगर नहीं होता तो हम भूल जाएंगे ये सब. But let's try. Let's give it a try. And then I recorded my first song, Shakki Balma, which was, I mean, it sounded amazing. But then again, एक कोविड की वेव आ गई थी एंड इट वाज अ पार्टी नंबर। तो फिर वो थोड़ा ऐसे ही, एंड आई वाज लिटिल यू नो डिसहार्टेंड कि ओह माय गॉड मेरा पहला गाना है। But then I was like कि नहीं, अब I have to try my hand in this as well because I was enjoying. मतलब तो खून मुंह लग गया है, तो करना ही है। Exactly. And COVID के बाद ऐसा था ना, new me. तो एक अलग image, अलग वो बना, लोगों को दिखाना था, तो I was enjoying that, you know, स्टूडियो में रिकॉर्ड करने में मुझे इतना मज़ा आने लग गया। एंड या फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के वजह से फिर अच्छे अच्छे गाने भी आते रहे, वो गाने अच्छे चले, कुछ गाने नहीं अच्छे चले, बट जब अच्छे चले तो आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मैं बनूंगी सिंगर in addition to like 100 things that you do. Well, चित्रांशी, हमने बातें तो आपके बारे में बहुत सारी कर ली, हमें बहुत कुछ पता चल गया आपके बारे में। मुझे बताइए कि अभी आपके लिए what are the interesting things that are coming up except Tim Tim of course because Tim Tim is new. Tim Tim तो हो गया अब क्या आ रहा है आपके फैंस के लिए? यार मतलब काफ़ी, अब जैसे 2026 सब बोल रहे हैं कि अलग साल होगा, डेफिनेटली इट्स गोना बी अ डिफरेंट ईयर फॉर मी एज वेल। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द पाइपलाइन एंड of course I cannot say that right now, but थोड़ा सा हिंट अगर आप देंगी तो हम मतलब किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ सबको दिखाएंगे। इस साल मैं बहुत ज्यादा दिखूंगी। Very good, I like that. Yeah, so बस इतना ही बोलूंगी कि well, जितने भी लोग रिक्वेस्ट वाला शो देख रहे हैं, brace yourself because चित्रांशी आने वाली है more often than not, और I'm pretty sure कि आप इस शो पर भी आएंगी जितनी बार आप नई चीजें लेकर आएंगी। We are very excited for that. Well, चित्रांशी, जैसा कि मैंने कहा था, मैं अब थोड़ी देर पहले के लिए लेकर जाता हूँ आपको, जहाँ पे आपने बोला था कि आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, राइट? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसमें आपकी इंग्लिश स्किल्स टेस्ट होंगी, ठीक है? क्योंकि मैं बेसिकली आपको हिंदी में देने वाला हूँ एक वर्ड, और आपको मुझे बताना है कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है? आई एम प्रीटी श्योर यू विल डू वेरी वेल हियर। ओके, तो मुझे ये बताइए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुंजनकारी मानवहारी रक्त पिपासु जीव। What? गुंजनकारी मानवहारी रक्त पिपासु जीव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? What is गुंजनहारी? गुंजनकारी मानवहारी रक्त पिपासु जीव। यार मैं अपने मतलब मैं गैस भी नहीं कर सकती हूँ। अरे just try कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है? गुंजन तो नाम होता है। हाँ, गुंजन का मतलब होता है जो गूंजता है। गुंजनकारी मानवहारी ह्यूमन मैनकाइंड हारी। I'm so sorry. रक्त पिपासु रक्त है नो, but what is बासु? पिपासु क्या होता है? यार ये मैं ऐसे आपको पूरा बता दूंगा तो फिर आप क्या गैस करेंगे? रक्त पिपासु जीव तो पता ही होगा। एनिमल या ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मुझे लगा कुछ अजीब सा ही होगा। नहीं, I जो गूंजता है मानवहारी इज हर्टिंग द ह्यूमंस। रक्त पिपासु जो खून पीता है जीव। जो गूंजता है हर्टिंग द ह्यूमंस, खून पीता है। Come on, now you've broken it down. मच्छर। Yes. Oh my God. मच्छर। Oh my God. ये कहाँ से लेकर आए? Okay, what do you call मच्छर in English? Mosquito. Yes. Yeah. Okay. Your next word is हस्तपादन कसनैनी वस्त्रखंड। Gloves.
close, but Mittens. no. हस्तपादन is like हाथ में पहनने वाली चीज. आगे. कसनैनी वस्त्र खंड. कसनैनी वस्त्र खंड. I don't know. थोड़ा break it down. हाथ के लिए हाँ. कसनैनी वस्त्र खंड. Gloves नहीं. Think more. मैं डम शरद खेलने लग गया यहाँ पे. ग्लव्स के आगे और क्या पहन सकते हैं हाथ में? जरूरी नहीं है पहनते हो उसको. Think of all the things, all the words that start with hand. Handkerchief? Yes. Oh, अच्छा, yes. Okay, I'll make it simpler for you. चलो अच्छा ठीक है. मुझे ये बताओ कि ये तो पता होगा, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन है, ठीक है, तो इतना कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है. लंब दंड गोलपिंड धड़पकड़ प्रतियोगिता. रेसिंग? No, what? दंड. लंब दंड गोलपिंड धड़पकड़ प्रतियोगिता. लॉन्ग जंप. No, what? Love it. Love the enthusiasm, but go for it. Lamb dand. Dand is like. No. Dand is वो ना exercise. Lamb dand गोल पिंड धड़पकड़ प्रतियोगिता. Javelin. No. गोल पिंड is what? Goal. I don't know यार. गोल पिंड. Cricket. Yes. Oh my yes, God. लंब दंड. कोई ऐसे क्यों बोलेगा? लंब दंड is लंबा डंडा. अच्छा. गोल पिंड is ball. बेसबॉल भी हो सकता है. धड़पकड़ प्रतियोगिता हो तो सकता है, but this is cricket. Okay. ये तो you'll guess. Okay. लकड़ी के मेज पे ले टकाटक दे टकाटक. You have to guess this. Table tennis. Yes. Yeah. Finally. Something I got. Okay. If you were to tell me what is antarjal in English, what would you say? This is literal translation. अंतरजाल. Internet? Yes. Good. छोटे प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा. छोटे प्याज को बेबी अनियंस. नहीं. Oh अच्छा. Are you into cooking? Yeah, I love cooking. Okay, so छोटे प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बट छोटे प्याज मैंने कभी यूज नहीं करे. अरे छोटे वाले प्याज यार सांभर में डालते हैं. उनको क्या बोलते हैं? बेबी अनियंस जैसे बेबी टोमेटोज. शैलेट्स. जीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूमिन. दालचीनी. सिनेमन. Oh, good stuff. तेज पत्ता. बे लीफ. स्टार फूल. स्टार फूल ही बोलते हैं. I don't know. वो 5 जो मसाले होते हैं उसका पार्ट होता है वो. Star anise. Oh, star anise. Yeah. I didn't know that. Okay. अजवाइन को क्या बोलते हैं? Asafoetida. No. Yeah. No, that's hing. Yes. Asafoetida is hing. वो मेरा अगला सवाल था, but good stuff. अजवाइन को मुझे पता था ये. Okay. बट नहीं याद आ रहा. बताइए दो. कैरम सीड्स. कैरम सीड्स बोलते हैं. इलायची को क्या बोलते हैं? कार्डमम. But irrespective, you did exceedingly well. Good stuff. तो मतलब इंग्लिश में आप पास होती हैं काफी. थैंकफुली ऐसे ही क्वेश्चन थे, वरना वो लिटरेचर वाले क्वेश्चन होते थे. लिटरेचर मैं पूछ सकता हूँ ऐसे. नहीं प्लीज, थैंक यू. Which is your favorite? No, I'm just kidding. अच्छा, मुझे ये बताइए कि you know we've spoken a lot about your background, your history. Tell me like the best memory you've had while recording a song. एक्चुअली चीटर की ही है मेमोरी. तो हमने चीटर ना 3-4 बार रिकॉर्ड किया था. Okay. एंड द फर्स्ट टाइम आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग, इट वाज साउंडिंग गुड बट वी वर नॉट Happy about it, आई वाज नॉट सैटिस्फाइड. देन अगेन आई वेंट टू चंडीगढ़ टू रिकॉर्ड द सॉन्ग. Okay. Again something was missing, and then again the song got recorded in Delhi. Mo Fusion came to the studio and हमने वहाँ पे गाना रिकॉर्ड किया. And I don't know, सब कुछ सेम था बट गाना अच्छा लगा. तो लाइक इट वाज समथिंग कि ओके ऐसा भी होता है. शायद आई वाज नॉट इन द जोन एंड यू नो. तो या दिस इज समथिंग दैट आई रिमेंबर बिकॉज सॉन्ग डिड वेल. तो ऑफ कोर्स उससे जुड़ी हुई जितनी भी मेमोरीज होती है आपको भी याद रह जाती है.
तो या ये चीज़ मुझे याद है. Beautiful. Well, मुझे ये बताइए चित्रांशी that you are somebody who's also very active on social media. In fact, you started one of your journeys in life started from social media, right? मुझे बताइए कि आज के टाइम पे for all the people who are aspiring singers, who are you've also done modeling, you're also a dancer, you're also an actor. The list just goes on. But जो लोग आज के टाइम पे who want to enter this space of entertainment, do you think that social media has made it better, or do you think it's become more difficult because now literally everybody is on social media and everybody wants to create content or enter the entertainment space? So what do you think how the dynamics have shifted? So I think everything, like with time changing, हर चीज़ में changes आ रहे हैं. And earlier I used to feel that यार सोशल मीडिया की वजह से ना एक्टर्स आर्टिस्ट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज यू नो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं एंड आजकल लोग सिर्फ नंबर्स देखते हैं. ओ माय गॉड, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसके इतने फॉलोअर्स हैं. तो आई यूज टू गेट वेरी इरिटेटेड, बट देन विद टाइम आई रियलाइज दैट यार जो इंसान बॉम्बे या ऐसे बड़े शहर में नहीं आ पाता है काम के लिए, आज एक ऐसा उसे मौका मिल रहा है कि छोटे शहर में बैठकर, गांव में बैठकर भी वो अपना फ़ोन सिर्फ खोल रहा है और अपनी वीडियो डाल रहा है. एंड विच इज़ सच अ गुड थिंग. लाइक उस चीज़ की वजह से हमें इतने सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, टैलेंटेड लोग देखने को मिल रहे हैं. कितने सारे यू नो, सो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. उत्तराखंड में सडनली देयर इज़ अ बूम इन यू नो आर्टिस्ट. लाइक इतने सारे लोग डांस वीडियोस डाल रहे हैं, सिंगिंग वीडियोस डाल रहे हैं. एंड आई फील सो गुड दैट ठीक है, उनके लाइफ में किसी वजह से वो बॉम्बे जैसे शहर में नहीं आ पा रहे हैं, बट अगेन दे हैव दिस थिंग दैट दे हैव इंटरनेट, दे हैव सोशल मीडिया टुडे. सो दे लाइक कोई एक छोटे शहर में बैठकर भी अपना नाम बना सकता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. लाइक आई फील सो गुड. करेक्ट. या बट फॉर आर्टिस्ट लाइक यू, आपको कैसे वो चीज़ इम्पैक्ट करती है? मतलब हाउ डू यू थिंक दैट in the coming times, matlab how the artist in general, do you think that they are getting like benefited from it, or do you think कि थोड़ा सा जो already established artist है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा disadvantage feel हो रहा है? मुझे पहले अगेन एज आई सेड, मुझे पहले लगता था ऐसे, बट एक जो बूम आया था ना इन्फ्लुएंसर्स का, जब टिकटॉक था, जब म्यूजिकली होता था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था. बट देन अगेन आई फील दैट अगर कोई इंसान टैलेंटेड है और अगर उसमें डेडिकेशन है, वो डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, तो उसको कोई नहीं रोक सकता. लाइक वो लोग आके चले गए हैं जो सडनली, जिनके यू नो फॉलोअर्स बढ़े और सडनली फेमस हुए, एंड दे आर लाइक gone. Like you can't see them now anywhere. But people who are talented, जिनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट था किसी भी चीज़ का, एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तो वो रहे. तो आई थिंक टैलेंट इज वॉट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. So that's all folks, this was रिक्वेस्ट वाला शो फॉर टुडे, जहाँ पे बातें हुई काफी करारी और की इन्होंने अपनी फुल ऑन मनमानी. प्लीज गिव इट अप वंस अगेन फॉर चित्रांशी ध्यानी. चित्रांशी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन रिक्वेस्ट वाला शो. कैसा लगा आपको रिक्वेस्ट वाले शो पे आके? बहुत अच्छा, हमेशा अच्छा लगता है. लास्ट टाइम भी आई एंजॉयड इट एंड इस बार भी मुझे बहुत मजा आया. अगर चित्रांशी ध्यानी के साथ आपको रिक्वेस्ट वाले शो का ये एपिसोड पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज़ूम.